Hello everyone and welcome to the channel. Spellings form a very important part of English language, but are you one of those who always faces problem while writing the spellings? You are always confused whether to end up the spelling with ER or AR or which prefix to use, which suffix to use. Don't worry, all your problems will be sorted out here in this particular video because we will be discussing about some simple rules how to master the spellings. Please watch the video till the end because we will be discussing and explanation will be done alongside to learn the simple rules and examples will be discussed. So let's begin with today's video. As you can see over here, 10 words, confusing words are given in which we tend to make some mistakes. Okay, like in the first word, it is committee. So we are confused whether to write single M, double M or single E, double E. Same way you can see association, or if we discuss about homophones which have got similar sound but the spellings are different and the meaning is different. So this stationery which ends in ERY, it means pen, pencil, eraser, sharpener, and this stationery which ends with ARY suffix, it means still. Same way we can see 90, kilometer, 12, embarrass. So it is just an example to show you that English has got so many words which confuse us and we end up making spelling mistake. But let us start with learning the rules and make our concepts clear. So the first rule says that if we associate certain difficult words with familiar words, we can remember the spellings correctly. So कहने का मतलब क्या है that कोई भी spelling में अगर आपको कोई difficulty आती है, you have to associate that difficult word with a simple familiar word. तो हमें तब spelling mistake नहीं होगी. जैसे example, stationery. Like you have seen in the previous slide, first slide में जैसे हमने देखा था stationery, this word ends with the suffix ARY. तो जहाँ पे ARY होता है तो आप याद कर सकते हैं कि इसका मीनिंग होता है either stable और still. Still means एक ही जगह में रुके रहना, स्थिर. So this is the spelling of stationery which means still. अगर आपको हाइट में ऑलवेज कंफ्यूजन होता है कि ई आई लगाए या आई ई लगाए, सो कैसे याद रखना है इसको? यू जस्ट हैव टू ऐड एच, द लेटर एच बिफोर 8 एंड द स्पेलिंग ऑफ हाइट यू कैन राइट करेक्टली. सिमिलर थिंग यू कैन डू विद द वर्ड 40. अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है? बिकॉज हमें तो 4 की स्पेलिंग याद है, FOUR. So we are always confused whether 40 is written as FOURTY or FORTY. So आपको कैसे learn करना है ये? जो हमने first rule यहाँ पे discuss किया है कि हम कुछ familiar word से उसके साथ association कर लेंगे. तो यहाँ पे जैसे एक preposition use की है plus suffix use किया है, FOR plus TY. So UR नहीं use करना है, that is incorrect, while 40 is correct. अब 90 को लेते हैं. We know how to remember the spelling, NINETY, क्योंकि नाइट की स्पेलिंग प्लस TY सफिक्स हमेशा इकट्ठे लिखा जाएगा और 90 विल बी करेक्ट. हम इसमें ई को ड्रॉप नहीं करेंगे. अब यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे हम, कहाँ पे ई ड्रॉप करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और भी बहुत से रूल्स अभी हम डिस्कस करते हैं. पहले हम देखेंगे द वर्ड ग्रामर इटसेल्फ वी विल टेक. अब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा देखा गया है कि काफी लोग इसमें स्पेलिंग मिस्टेक क्या करते हैं, GRAMMER लिख लेते हैं, जबकि ये कैसी है स्पेलिंग, GRAMMAR. इट फिनिशेस विद AR. सो आप कैसे लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब लिखना शुरू करते हैं ना तो स्पेलिंग मिस्टेक तो होती है. आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि दिस लेटर और दिस वर्ड ग्रामर हैज गॉट डबल A, डबल M, डबल R. So you should always write grammar and not end it up with ER. अब देखिए कमिटी, हमने फिर पहले भी डिस्कस किए ना, वो कुछ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स डिस्कस किए हैं. कमिटी ऑल्सो हम रिमेम्बर कर सकते हैं, डबल M, डबल T, डबल E.
so we spell it as committee. Embarrass में भी 3 pairs रिपीट हो रहे हैं, डबल ए डबल आर डबल एस. सो हम डिफिकल्ट वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, उसको एसोसिएट करेंगे, कुछ माइंड मैप्स बनाएंगे, ओके, और सिंपल वर्ड्स के साथ एसोसिएट करके उसकी स्पेलिंग्स को हमेशा के लिए लर्न कर लेंगे. अभी देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट सम अदर वर्ड्स विच रिक्वायर कॉशन. जैसे कैलेंडर. कैलेंडर में लग रहा है कि जैसे DER आता है, बट यहाँ पे जो चारों की स्पेलिंग है वो करेक्ट दी गई है. कैलेंडर मीन्स CALENDAR. मैथमेटिक्स THE. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्पेलिंग्स पे. अब प्लेजेंट, ये भी वही होता है, PLEASENT भी लिख लेते हैं, तो वहां पे तो मिस्टेक हो गई, PLESANT. और गवर्नमेंट में N साइलेंट होता है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द स्पेलिंग, GOVERNMENT. So please pay attention to these kind of words as well. Let's move on. Now, to write spellings correctly, there is hardly any strict rule. अब हम ये तो जानते ही हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज है. यहाँ पे रूल्स तो हैं, बट रूल्स के साथ साथ स्पेलिंग रूल्स में एक्सेप्शंस भी बहुत सारे हैं. वो भी आपको केसेस स्टडी करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे. रूल्स तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो एक्सेप्शन वाले केसेस है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. Some rules are discussed below. Rule number 1 says, no change is made in the spelling when a prefix is added to a word. अब prefix क्या होता है? Prefix, base word, suffix, ये आपको पता होना चाहिए. Prefix होता है कुछ लेटर्स जो कि बेस वर्ड से पहले ऐड होते हैं. प्री मीन्स पहले, तो कुछ लेटर्स जो कि बेस वर्ड से पहले ऐड होके एक नया वर्ड बनाते हैं और ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड इज मेड. और एक होता है सफिक्स. सफिक्स होता है जो भी बेस वर्ड है उसके आगे वो वाले लेटर्स जुड़ जाएंगे और फिर से नया वर्ड फॉर्म होगा जिसका भी मीनिंग डिफरेंट होगा. कई बार कुछ वर्ड्स में प्रीफिक्स होता है, देन बेस वर्ड इज एडेड टू इट प्लस सफिक्स, तो एक नया वर्ड हो जाता है इसमें इन्वेंट. सो दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन टू लर्न अबाउट प्रीफिक्स, सफिक्स. नाउ लेट अस गेट बैक टू द रूल्स ऑफ स्पेलिंग. ये जो फर्स्ट रूल है वो कह रहा है कि अगर हम कोई भी प्रीफिक्स लगाते हैं किसी भी बेस वर्ड में तो क्या होता है, स्पेलिंग चेंज नहीं होती है. जैसे कि अननेम्ड है, इसमें डबल एन आएगा क्योंकि अन है प्रीफिक्स, नेम्ड है बेस वर्ड और रूट वर्ड भी कहते हैं ऐसे. तो उसी तरीके से इर्रेगुलर की स्पेलिंग देखिए, इलीगल की स्पेलिंग देखिए, इमेच्योर, डिस्कम्फर्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग. सो दिस रूल यू शुड लर्न बाय हार्ट. एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. द लेटर Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U. तो आप देखिए, पहले भी आपने कभी ध्यान तो दिया ही होगा इस बात पर, Q के साथ हमेशा U ऐड होता है. Q इज ऑलवेज फॉलोड बाय U, like queen, queer, quaint, quote, quite, quarrel. Now rule number 3. इसमें हम रूल नंबर 3 में पॉइंट नंबर A, B, C and D डिस्कस करेंगे. इन सब में वही रूल्स डिस्कस किए गए हैं कब हम किसी वर्ड में E को ड्रॉप कर देते हैं, कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें हम E को एज इट इज रहने देते हैं. तो लेट अस बिगिन विद A पार्ट. When suffix begins with a vowel such as ing, able, ans or us, and it is added to a word which is ending with E, we drop the E if it is the final letter of the root word. इसको आप ध्यान से समझिए. ये कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ड जो बेस वर्ड है उसकी स्पेलिंग ई से फिनिश हो रही है और जो सफिक्स ऐड हो रहा है उसकी बिगिनिंग वावल से हो रही है, एनी वावल. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट वावल एंड कॉन्सोनेंट्स. अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं आप दूसरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. In the poetic devices video, I have discussed vowel and consonants in detail.
Again, I can just give a brief introduction that in English alphabet, which is made up of 26 letters, A, E, I, O, U, they are called the vowels as well as other letters are called the consonants. तो अगर हम वावल से एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे ing ऐड हो रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, वी विल ड्रॉप ई, और फाइनल स्पेलिंग जो होगी उसमें ई नहीं नजर आएगा। आप जब के कोई भी आप केस ले लो, जैसे हम ये ले लेते हैं डाइविंग, डाइव बेस वर्ड है, ई से फिनिश हो रहा है, और जो इसका सफिक्स लगा है वो है ing, तो आई इज अ वावल, ओके, तो इसमें हम ई हटा देंगे और डाइविंग बन गया। अब ing के तो हमने दो एग्जाम्पल्स ले लिए। लेट अस टॉक अबाउट कंटिन्यूअस, बिकॉज हियर ऑल्सो many mistakes are made in spelling. Continue, E से finish हो रहा है और इसमें हमने suffix लगाया है OUS. O is also a vowel. So हम क्या करेंगे, E नहीं लगाएंगे जब final spelling लिखी जाएगी। तो ये एक रूल है A part. Let's move on to B part. ये एक नया क्राइटेरिया क्या है, when there is a C or G before the final E of the root word, we don't drop E. If the suffix we want to add to it begins with a, able, और o, ous. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि वर्ड अगर ई से फिनिश होता है लेकिन ई से तुरंत पहले, उससे पहले जी या सी आता है वर्ड में, और जो यहाँ पे सफिक्स ऐड है वो एबल हो या OUS हो, तो तब क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ई को ड्रॉप नहीं किया है। लेट्स सी द एग्जांपल्स। करेजियस, करेज ई से स्पेलिंग फिनिश हो रही है रूट वर्ड की, और ई से पहले आया है जी, OUS इसका सफिक्स है, तो बन गया करेजियस। हमने ई को एज इट इज रखा है, वी हैव रिटेन्ड ई, वी हैवंट ड्रॉप्ड इट। तो ये वाला रूल भी लर्न करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, if we add a suffix that begins with a consonant, we retain the final e. अब फिर से जैसे डिस्कस कर रहे हैं हम सारी स्पेलिंग्स जो कि रूट वर्ड ई से फिनिश हो रहे हैं। अब इसमें अगर हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, पिछले दो रूल्स तो थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उनके सफिक्सेस वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं, अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो तभी भी हम ई को रिटेन करते हैं। जैसे कि सिंसियरली, आप देख लीजिए, यूजफुल, सिंसियरली, क्लूलेस, 90 एंड कंप्लीटली, इसमें सब जगह कॉन्सोनेंट साउंड से सफिक्सेस शुरू हो रहे हैं और बेस वर्ड ई से फिनिश हो रहा है। ये भी एक रूल है ई से रिलेटेड। नाउ लेट्स डिस्कस सम एक्सेप्शंस। ये एक्सेप्शंस हैं जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे भी whole, this word is ending with e and the suffix is starting with a consonant sound, but here we have dropped e. तो exception cases तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। और ये जो exception है, it is applicable to the words like icy, gently, idly, क्योंकि यहाँ सब में फाइनल e जो है रिटेन नहीं किया गया है जब हमने स्पेलिंग बनाई है। अभी आप डी रूल को देखिए, ये डबल वाल्स पे एप्लीकेबल है। इफ अ वर्ड इज एंडिंग विद ई बट बिफोर ई, दैट मीन्स ई से पहले another vowel is used, then generally we drop e. यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कि ई से वर्ड फिनिश हो रहा है लेकिन उससे पहले another vowel is used, तब क्या होता है, हम ई को जनरली ड्रॉप कर देते हैं और दूसरे वावल के साथ सफिक्स को जोड़ के नई स्पेलिंग बनाते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस, आर्ग्यूइंग, एक ही वावल को यूज करते हैं और उसके साथ सफिक्स को जोड़ देते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं मैंने इस वीडियो में। देयर आर मेनी मेनी मोर रूल्स विच आर देयर इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेलिंग। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में उन रूल्स को डिस्कस करूंगी और
तब फाइनली कई वीडियोस बनेंगे, क्योंकि so many things, so many rules, if I take in one particular video, we will get totally mixed up and confused. तो धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपने कोई भी नॉलेज गेन की है तो प्लीज लाइक दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। और प्लीज कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के बता सकते हैं अपने व्यूज। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।